तो भाई ईरान में जमकर प्रोटेस्ट हो रही हैं, इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है? हमने उसके बारे में वीडियोज़ भी बनाए हैं, अपना सॉर्ट ऑफ ओपिनियन रखा है अपनी रिसर्च करके। बट फिर अल्टीमेट तो हम देखें ना कि भाई जो एक्सपर्ट्स हैं पूरे दुनिया में वो क्या बात कर रहे हैं, उनकी सुनते हैं कि एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं टू अ पॉडकास्ट, इन फैक्ट वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूब चैनल्स डैनियल डेविस डीप डाइव एंड उनके शो पे आए हुए हैं आज जॉन मीयरशाइमर। तो लेट अस सी कि वो क्या कहते हैं। On my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So, On Sanctuary City, and we'll act accordingly. On Sanctuary. This is a classic case of regime change perpetrated mainly by the United States and Israel. That's what's going on here in Iran. When the protests first broke out, and we listened to the Western media spin this story. The story that you get is basically you have a large number of people inside of Iran who are deeply, profoundly dissatisfied with the regime. And the regime has been mismanaging the country. And they have decided that the time has come not simply to protest, but to overthrow the regime. And this makes eminently good sense from a Western point of view because क्योंकि ये हमेशा ही होता है ना वेस्टर्न उसमें, खास तौर पे अगर आप बीबीसी उठा लो, ठीक है, आपके न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इनको अगर आप पढ़ लोगे तो दिमाग ही आउट हो जाएगा। DW, ये सारे जितने भी प्रो वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ मीडिया हाउसेज हैं, ये अपने देश को इन सब चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, ठीक है? मतलब बीबीसी इंडिया आके बहुत तगड़ी सॉलिड रिपोर्टिंग कर देगा, यूड बी लाइक वाह यार बीबीसी। बट वही बीबीसी जब इन सब मैटर्स में रिपोर्ट करेगा रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन या जो ईरान में हो रहा है, या जेनोसाइड को जेनोसाइड भी नहीं बोल सकता वो मीडिया हाउस। तो भाई ये पर्टिकुलर हालात है वहाँ पे। एंड अब तो एक्सपर्ट ही आपको बता रहे हैं, ये बताएंगे एग्जैक्टली कि रेजिम चेंज होता कैसे है, वो हम चाहते हैं कि आप लोग सुनो। could like a regime of the sort that we see in Iran. So this is the story that you get in the West. But it's now become, I think, manifestly clear that this story is inaccurate. And this is what is going on in Iran is right from the U.S.-Israeli playbook on how to produce regime change. Now, what exactly am I saying here, Danny? We have basically a 4-part strategy, and using. सबसे पहले तो एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पीछे दिख रहे हैं मॉस्क वॉस जला रहे हैं, अरे यार कोई ईरानियन सिटीजन मॉस्क जलाना चाहेगा क्या? अब चलो सुनते हैं। अब ये बता रहे हैं कि रेजिम चेंज होता कैसे, 4 पार्ट में होता है, ये बता रहे हैं 4 पार्ट स्ट्रैटेजी होती है रेजिम चेंज की। U.S. military is the 4th part of the strategy. But let me just quickly walk you through the first 3 elements of the strategy. The first element is that we put sanctions on a country and we wreck that country's economy. And we do all sorts of things to make the body populace in that country profoundly unhappy because they're suffering enormous costs. We're punishing them with these sanctions. This is what we did in Venezuela. This is what we did in Iran. So you want to remember when these people are protesting, right? They're protesting because of the terrible economic conditions. But who played the principal role in creating those terrible economic conditions? It is the United States of America. So that's the first step. तो पहला स्टेप ये बता रहे हैं कि सैंक्शंस लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। देखो यूएस डॉलर है वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी, आप जनरल फॉरेक्स भी कभी करवाओगे तो आपको बेस्ट रेट जनरली अगेंस्ट यूएस डॉलर्स ही मिलता है। तो हर एक एंड यूएस डॉलर ऐसे कहीं भी जाओगे तो आदमी आपको थोड़ा प्रीमियम ही देने को तैयार हो जाता है बहुत बारी, तो ठीक है। तो इन्होंने कैसे बनाया हुआ है रिजर्व करेंसी? ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद,
तब यूएस डॉलर वाज बैक्ड बाय गोल्ड। तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो गोल्ड बैक्ड करेंसी हैं, एंड वर्ल्ड वॉर 2 में तो ये विक्टोरियस थे, तो उन्होंने कहा अब वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी होगी यूएस डॉलर। ठीक है, तो अब अगर आपको पेट्रोल ट्रेड करना है तो आपको यूएस डॉलर में ट्रेड करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, बट अब ये जब आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, मींस आप यूएस डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर सकते। आप इमेजिन करो कोई भी देश हो, हमारी ऑडियंस जनरली सब कॉन्टिनेंट की ज्यादा है, अगर हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं तो हम यूएस डॉलर में नहीं ट्रेड कर सकते। विच मीन्स आपको, जैसे अगर ये बात करें, वेनेजुएला की बात कर रहे थे, ये वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगाए, अरे वो फिर किसको बेचेंगे ऑयल? जब आप यूएस डॉलर ही नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो आपका मेजर, आप पूरे दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो। एंड अनलेस, एंड फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन, देखो अब बहुत सारे इस टाइप के अदर पार्ट ऑफ द आर्गुमेंट है कि वेनेजुएला, अरे तुम्हारे पास तो इतने रिसोर्सेज थे, कुछ तो कर लेते। ठीक है, ईरान, तुम्हारे पास तो इतने रिसोर्सेज थे, कुछ तो कर लेते। बट इट्स नॉट, बट व्हाट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इज के एक तो चाइना पे उतने भारी सैंक्शंस नहीं है। रशिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जिस देश, इतना बड़ा देश है, इतने रिसोर्सेज भी हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, सैंक्शंस नॉट अ प्रॉब्लम। हम यूरोप वगैरह को मेजॉरिटी वो लोग नेचुरल गैस बेचते थे, ऑयल बेचते थे। इनको लगा कि भाई ये तो सिर्फ एक बड़ा सा पेट्रोल पंप ही है, रशिया, इसके ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं अपन। बट हुआ उल्टा। एज अ रिजल्ट यूरोप की इकोनॉमी सफर करने लग गई, क्योंकि उनको जो चीप फ्यूल यहां से मिलता था रशिया से, वो मिल नहीं रहा। अब वो इंडिया आ रहा है, इंडिया से रिफाइन होकर यूरोप जा रहा है, बहुत सारा उसमें से। ठीक है, नेचुरल गैस वहां नहीं जा रही, कोई बात नहीं, उन्होंने चाइना के साथ इतने टाई स्ट्रेंथन कर लिए एंड वो आपस की करेंसी में ट्रेड करने लग गए। दैट इज वाई पीपल से दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो डॉलर की हेजेमनी है, जो बना हुआ है एकदम रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, दिस विल कोलैप्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो भाई रशिया, चाइना ही कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो सैंक्शंस, डिस्पाइट द सैंक्शंस, काफी दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। चाइना पे भी बाय द वे काफी सैंक्शंस लगे हैं, नॉट एज हार्डकोर एज रशिया। रशिया पे तो इतने ज्यादा लग चुके हैं, क्या ही बात करो। तो ये डेफिनेटली एक पार्ट है, बट द रीजन फॉर द इकोनॉमिक हार्डशिप जो ये बात कर रहे हैं, वो आती किस लिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिकॉज आपने उस देश को पूरा एक्सक्लूड ही कर दिया वर्ल्ड इकोनॉमी से, ग्लोबल इकोनॉमी से, उनके ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शंस लगा के कि वो बेसिकली यूएस डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर पाते। एंड फिर अब वो कहते हैं कि भाई अब हमारे सर्वाइवल की बात है, हम ट्रेड नहीं करेंगे यूएस डॉलर में, तो हम युआन में बेच लेते हैं ऑयल। तो फिर जो वेनेजुएला में हुआ वो आपको पता है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात, फिर सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि सैंक्शंस लगाते हैं। ठीक है, किन किन देशों को इन्होंने रेजिम चेंज करना चाहा, उनके ऊपर सैंक्शन लगाए? लिबिया, ईरान, सीरिया। ठीक है, रशिया में लोग रेजिम चेंज बिल्कुल चाहते हैं। ठीक है, वेनेजुएला। ये हैं कुछ जो हमने रिसेंट पास्ट में देखे कि भाई रेजिम चेंज कराना है तो फर्स्ट थिंग दे डू इज सैंक्शन। ठीक है, अब जितने भी लोग कहते हैं, बांग्लादेश, नेपाल का एग्जाम्पल देते हैं, क्या उनके ऊपर सैंक्शन लगे? क्या उनके ऊपर सैंक्शन लगे? द आंसर इज नो। दैट इज व्हाई आई स्टिल मेंटेन, अनलेस कुछ ऐसी और न्यूज आ जाए सामने, आई स्टिल मेंटेन, मेरा ओपिनियन तो यह है कि वहां पे ऐसा कोई यूएस ने रेजिम चेंज नहीं करवाया। Then the second step is we decide at some point that we're going to foment massive protests and we're going to fuel those massive protests. And this is what happened in Iran in late December of last year, December 2025. And there's all sorts of evidence now. There's a very famous piece that came out in the Jerusalem Post on December 29th that makes it clear that Mossad was deeply involved in what has been happening in Iran. Furthermore, there are comments by President Trump and former Secretary of State Mike Pompeo that make it clear that the United States has been involved from the get-go in terms of fueling this crisis. I would also note to you that when the Iranians turned off the internet and they shut down phone services, what the protesters then were using were Starlink terminals. And it turns out they had 40,000 Starlink terminals. Who do you think gave them those Starlink terminals? We know the answer to that. So the second step, again, is to foment and fuel protests, which eventually turn into a revolution and regime change. The third
तो सेकंड डे बता रहे हैं कि भाई प्रोटेस्ट चालू करा दो वहाँ पे, लोगों में ऐसा जोश भर दो, ठीक है। एंड कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ का कि बांग्लादेश में, ठीक है, या फिर नेपाल में ऐसे सीआईए एजेंट्स वगैरह या मोसाड या कोई भी प्रेजेंट था उन चीज़ को फ्यूल कराने के लिए। ईरान में तो इतना सारा है, जॉन मियरशाइमर साहब ने ही बताया, ठीक है, हमने भी अपने वीडियो में बताया है। जेरूसलम पोस्ट खुद आके कह रहा है मोसाड वहाँ पे है, मोसाड खुद आके कह रही है हम वहाँ पे हैं, ठीक है। लोगों के पास गन्स वन्स पहुंच गई भाई। ये जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रही थी, आप मुझे बताओ इस टाइप की वेपनरी थी क्या उनके पास? जो नेपाल में चल रही थी, इस टाइप की वेपनरी थी क्या उनके पास? आप देखो वो जो सरकारी बिल्डिंगों में भी घुसे हैं नेपाल में, कैसे-कैसे घुसे हैं। यहाँ पे तो दे हैड स्नाइपर राइफल्स एंड व्हाट नॉट, इतने सारे आर्म्स मिल गए थे उनको। एंड देयर आर रिपोर्ट्स टू से कि ये अमेरिकन आर्म्स थे, इजरायली आर्म्स थे। इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स भी हैं कि ये कर्ड्स को भेज रहे थे वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करने, ठीक है। कर्ड्स कि भाई आप वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करोगे एज सॉर्ट ऑफ मिलिशिया। अराउंड 500 लोग बताए जा रहे हैं। टर्की ने बताया ईरान को, विच इज़ अ मेजर शिफ्ट, बहुत ही बढ़िया बात है आई वुड से फॉर द वर्ल्ड, कि टर्की ने बताया कि भाई ये घुसपैठिए आ रहे हैं, ये है इनकी लोकेशन, और इनको उनको डील विद कर लिया गया, आई बिलीव मार दिया गया उन लोगों को विद आर्म्स। ऐसे इन्फिल्ट्रेशन होने वाली थी। एंड ईरान भी इतना बड़ा देश है भाई, बॉर्डर कहाँ कहाँ कंट्रोल कर लोगे आप? तो टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया। एंड जैसे इन्होंने बताया कि भाई आप सबकी जब पे प्रोटेस्ट होती हैं, ठीक है, आप सबकी भाषा देखो क्या हो जाती है, ठीक है। कुछ भी ऐसा हमको देखने को नहीं मिला इन द केस ऑफ बांग्लादेश और नेपाल। ट्रंप की भाषा देख लो कि ठीक है, एक को भी मारा तो हम आ जाएंगे, ठीक है, अटैक कर देंगे। नेतन्याहू तो क्या ही बोले उसके बारे में। फिर इनका पपेट चालू हो जाता है, आई हेट दैट गाइस फेस। लोग उसके बारे में वीडियोस भी बना रहे हैं, अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट बना रहे हैं। ये रजा पहलावी, ठीक है, सॉरी अगर मैंने उसका नाम गलत प्रोनाउंस किया तो, बट मुझे लगता है वो इतना क्या बोलूं, मतलब इतना महत्वपूर्ण ही नहीं है वो कैरेक्टर कि उसके बारे में कुछ एज सच एकदम बात की जाए। बिकॉज कोई चांस ही नहीं है कि वो आके यहाँ पे बागडोर संभाल सकता है, ईरान को संभाल सकता है। वो आदमी कब से उस देश में रहा ही नहीं है। जब तुम वहां पे थे, तुम्हारे पिताजी जब थे जो वहां पे राजकाज करते थे, तब भी कोई चांस, तब भी मतलब लोग खुश तो थे नहीं। तभी तो रेवोल्यूशन हुआ ना, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, तभी तो हुआ। एंड जो ऐसा इंसान, एंड ये दिस गोज फॉर सेम फॉर द नोबेल पीस प्राइज विनर जो अब आके ट्रंप को दे रही है, मैं डेडिकेट करती हूँ नोबेल पीस प्राइज अपना, मारिया कोरिना माचादो। तुम अपने ही देश को कह रहे हो, अब एडवर्सरी को कह रहे हो कि हमारे देश में जाके बॉम्बार्ड कर दो। तो भाई कोई मतलब क्लियरली तुम्हारे देश के हित तो तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं। किसी तरह मैं पावर में आ जाऊं, पपेट बन जाऊं, ठीक है, ज़ायनिस्ट रेजीम का, वो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तो कोई चांस ही नहीं है कि उसको बिठा सकते थे ये लोग वहां पर। जब वेनेजुएला में उसको नहीं बिठाया मारिया कोरिना मचादो को, तो यहाँ पे इसको बिठाने का तो कोई सेंस ही नहीं था। एंड फिर वो जो फॉर्मर सीआईए डायरेक्टर, हेड ऑफ सीआईए, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका का, वो भी ओपनली जाके, माइक पॉम्पियो, वो भी ओपनली जाके ट्वीट कर रहा है हैप्पी न्यू ईयर एंड मोसाद, हम साइड बाय साइड हैं विद ईरानियंस और ये सब। तो भाई इतनी सारी चीजें एविडेंस बताती हैं कि देवर देयर, वो खुद ही बोल रहे हैं यार अपने मुंह से। चलो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। Step in the process is to foment a massive disinformation campaign. That's to convince everybody in the West that these protests are generated internally, that the United States and Israel have nothing to do with it, and that the protesters are noble patriots, and that we have every incentive to back them. And furthermore, this disinformation campaign sends the message inside of Iran that the regime is finished. The protesters are on a roll. There's no way the regime can shut this down. This time is different. So what we're trying to do is generate momentum with this disinformation campaign inside of Iran. Then the fourth step in the तो थर्ड स्टेप जो बात की कि इतना डिसइंफॉर्मेशन फैला दो, इतना डिसइंफॉर्मेशन फैला दो, जो बीबीसी और जो इनके सारे आउटलेट्स कर रहे हैं जिसके बारे में हमने बात की थी, इतना ज़्यादा कि आपको लगे बस
अब तो खत्म है भाई, अब तो बस हो ही गया। अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट इन इंडिया जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, ठीक है, उन्होंने खुद ही आके इस तरीके से वीडियोस बनाए कि यू वन वुड हैव फेल्ट के एंड ऑनेस्ट, बिल्कुल वो भी अपना ऑनेस्टली बता रहे हैं बिकॉज दे आर रीडिंग इट इन द न्यूज़। ठीक है, पूरी वेस्टर्न मीडिया उससे भरी पड़ी, इंडियन मीडिया तो क्या ही बोलो, इतनी ज़्यादा भरी पड़ी, ठीक है, इतना ज़्यादा कैंपेन के यू थिंक बस अब तो हो गया। लीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ जो मैं पढ़ता हूँ, लीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर्स तक में ये रिपोर्टेड था फ्रंट पेज पे कि अपना खमेनेई साहब तो बस अब जाने वाले हैं, रशिया जाने वाले हैं। कहीं-कहीं तो इतनी भी थी कि उनकी इतनी खरबों की प्रॉपर्टी है, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी है, वो किसी तरह उसको एनकैश करने के उसमें लगे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ असाद चला गया, ये भी चले जाएँगे। भाई असाद बहुत अलग ब्रीड है ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ये बहुत अलग ब्रीड है भाई। इनका वीडियो देखा है, बम फटता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भई इंसान को। मैं आपको बता सकता हूँ मोर देन 95% ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऐसा कुछ हो कि वो भरे ओपन महफ़िल में अपना स्पीच दे रहे हों एंड बम फटेगा, दे वुड लीव। उनकी सिक्योरिटी उनको ले जाएगी। ये आदमी वहाँ खड़ा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ा, बस एक हल्का-सा हिला एंड अपना स्पीच चालू भई। ये बताता है कि बंदे में कितनी दम है। तो ये जो था कि वो लड़की सिगरेट जला रही है अपना, उनकी फोटो वोटो जला के, ये सब भी पार्ट ऑफ दैट डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन एंड इंडियन मीडिया वाज फुल्ली इन्वॉल्व विद इट। हमारा लास्ट रिएक्ट तो इसी चीज पे था, फुल्ली इन्वॉल्व के भाई हाँ। गौरव आर्या तो अभी भी गा रहा है कि हो जाएगी रेजीम चेंज। अमेरिका वाले खुद हार मान लिए भाई, अब नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा उसका कि हाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अब तो ओपन न्यूज़ में आ गया है। पर वो अभी तक गा रहे थे कि भई हो जाएगा। उनको क्या फ़ायदा हो रहा है उससे मुझे नहीं पता। बट ये एक जनरल इस टाइप का पूरा मिसइन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन बहुत देखने को मिला ड्यूरिंग दिस टाइम। सोशल मीडिया खोल के देख लो, इट्स जस्ट फुल ऑफ ईरान कि भई ईरान में क्या हो रहा है। तो अगेन कमिंग बैक टू कि भई क्या नेपाल और वहाँ पे ऐसा था? देखो मिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन तो इतना हर तरफ हो जाता है। सबसे भारी तो हमने ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर फेस किया है। तो कुछ भी ऐसा होगा तो मिसइन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन ज़्यादा आएगी, बट इतने एजेंडा के साथ नहीं आएगी कि बीबीसी, आपका सीएनएन सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। सारे वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स एक ही भाषा बोल रहे हैं। एज़ अ रिज़ल्ट पूरे इंडियन मीडिया आउटलेट्स भी एक ही भाषा बोल रहे हैं। इतना ऑर्गेनाइज़ तो वहाँ पे कभी नहीं था। ठीक है, कभी कुछ ऐसे वीडियो क्लिप आ गई कि वहाँ पे मंदिर में जाके अटैक कर दिया बांग्लादेश में या नेपाल में। ये सब टाइप की चीज़ें बहुत आती हैं, व्हिच यू गो एंड फैक्ट चेक, देन यू रियलाइज़ अरे यार ये तो बहुत साल पुराना था और ऐसा कुछ था भी नहीं। अब आते हैं फोर्थ पे। Process is the United States military and probably the Israeli military as well come in once the protests have reached a certain point, and we attack all sorts of critical infrastructure, all sorts of elites inside of Iran, and we deliver the coup de grace. We finish off the regime. This is the basic playbook, right? You see it at play in Venezuela, right? It's regime change uh, uh, of a sort we've seen many times before. Now, one final point: it's failed. What? I'm sorry. Can you hear me? I could hear. हाँ, तो सबसे पहले वो बता रहे हैं इट्स फेल्ड। प्लान ये था कि भाई इतनी भारी प्रोटेस्ट करा दो, ठीक है, इतनी ज़्यादा हो जाए कि जो वहाँ पे सरकार एकदम तिलमिला जाए, उनको लगे बस अब तो ख़त्म, गैप्स आ जाए उनके आर्मी के बीच में एंड जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच में, रिलीजियस लीडर्स के बीच में, एंड जब वो हो तब अटैक करो। दैट वाज द पॉइंट, बट वो गैप्स कभी आए नहीं। ये जो बता रहे हैं लास्ट लेग, मतलब एकदम ही लड़खड़ा जाए, सामने वाला पूरा देश लड़खड़ा जाए तब अटैक करेंगे, बट वो कभी हुआ ही नहीं, इसलिए कभी अटैक भी नहीं हुआ। ये प्रोफेसर जॉन मेयरशाइमर यही सेम चीज हमको समझा रहे हैं। very clearly. Yeah, we hear you, Danny. Go right ahead. The question is, though, you said it's failed. What does that mean? What do you mean by it's failed? Well, Because we haven't done phase 4 yet, which we're going to get to in just a second. first of all, the number of protests in Iran has been reduced drastically. There are remarkably few protests today compared to how many there were a week ago. So it's just very important to understand that. Furthermore, a very important is तो ये बता रहे हैं कि भाई प्रोटेस्ट सब खत्म है ऑलमोस्ट। देखो
इंटरनेट शट डाउन कर दिया, ठीक है, कनेक्टिविटी नहीं रह गई। 40,000 स्टारलिंक टर्मिनल्स आए एंड बाय द वे अगर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की बात की जाए तो एक्स पे सबसे ज़्यादा था ये, सबसे ज़्यादा। एंड यू कैन सी दैट इलॉन मस्क वाज अ वेरी एक्टिव पार्ट इन इट, क्योंकि वही ठीक है, सरकार ये कर रही है तो तुमको करना ही है। उनको मदद और उसके जो भी बेनिफिट्स उनको मिलते हैं एज अ बिजनेसमैन, तो वो करते हैं, ठीक है। 40,000 स्टारलिंक टर्मिनल्स किसने भिजवाए? तो वो स्टारलिंक यूज़ कर रहे थे, फिर जिसको ईरान ने बंद किया यूजिंग रशियन एंड चाइनीज़ हार्डवेयर स्लैश सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ किया, उनकी मदद से स्टारलिंक बंद करवा दिया। जब वो स्टारलिंक बंद हुआ, प्रोटेस्ट खत्म। एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है। Israeli commentator, he's on Channel 12 in Israel, who's highly respected inside Israel and outside of Israel, has said explicitly that the protests have failed, that the government crackdown has succeeded. And by the way, I think if you listen carefully to what President Trump is saying and doing, he recognizes that this campaign to overthrow the regime has failed. And if it's failed in terms of the second and third strands of the playbook, how do you use military force to rescue the situation? Right? Well, Trump was intending to use military force for sure, but that was intended to be used. That military force was intended to be used once the regime was on its last legs. Well, the regime is not on its last legs. The regime has triumphed here. It has shut down the protests. Not completely, but it will completely shut down the protests, and it will hang large numbers of the leaders of those protests, right? So the question is, what can Trump do now, right? He's in a different situation than he thought he would be. Does he think he can rescue the situation with military force? Well, and if I could तो भाई बात अब यहीं आ जाती है कि प्लान जो था वो तो फेल हो गया, इसीलिए पूरा बिल्डअप हो रहा था कि करेंगे करेंगे करेंगे। अब तो न्यूज़ भी आने लगी है कि सऊदी अरेबिया, कतर एंड टर्की एंड बहरीन एंड ये जो देश हैं गल्फ कंट्रीज, ये लोग पहुंच गए ट्रंप के पास और इन्होंने बोला कि भाई ये अटैक मत करो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत तहस नहस हो जाएगा रीजन में, जो होना ही है अटैक अगर करोगे आप तो। बट मोर इम्पोर्टेंटली प्लान ही पूरा फेल हो गया। अब नो डाउट इन माय माइंड के आगे फिर से प्रोटेस्ट हो सकती हैं, फिर से उनको इंस्टिगेट कराया जाएगा, क्योंकि देखो हालत जो अंडरलाइंग हालत है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, जो इकोनॉमिक हालत है वहाँ पे, वो तो नहीं इम्प्रूव हो रही ना। तो फिर लोगों की परेशानी तो बनी हुई है। अब ये ज़रूरी है ईरान की सरकार के लिए, वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए, बिकॉज ऐसा बताया जाता है कि सब फाइनेंशियल मैटर्स वगैरह उनके हाथ पे रहते हैं कि भाई इस चीज़ को इम्प्रूव करें, जिस भी तरह से इम्प्रूव करें। यूनाइटेड स्टेट्स आपको 1 इंच नहीं देगा। आपने पहले उनके साथ न्यूक्लियर डील करके देख ली, ट्रंप ने ज़ायनिस्ट के प्रेशर में आके उसको ख़त्म कर दिया। आप नेगोशिएट करते रहे, उन्होंने आके कितनी गंदी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, कितना गंदा हमला किया, आपके टॉप लीडरशिप को एकदम ही मार दिया, ठीक है? एंड देन आपका 12 डे वॉर भी चालू हो गया। ये तो आपको कुछ नहीं देंगे। अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई इनके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, एंड उस तरीके से अपने लोगों की लिविंग कंडीशंस इंप्रूव करनी पड़ेगी। एंड दूसरा सवाल ये है कि ये जो बात करें, क्या ट्रंप अभी भी मिलिट्री एक्शन लेगा? फॉर नाउ इट सीम्स अभी कुछ नहीं होगा, बट आगे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मिडल ईस्ट की फॉरेन पॉलिसी ट्रंप नहीं चलाता, नेतन्याहू चलाता है।